certain pathways that you go and you become smarter doing that particular work. आपको MBA करना था तो आप BBA क्यों नहीं किया? I learn how to become smarter. टीचर समझ में ही नहीं आता है तो उसमें शायद ना जाए, लेवल है ही नहीं। कितने परसेंट है, 2% से भी कम है जो टैक्स भरते हैं। टीचर की ज़रूरत नहीं है शायद। आप लोग को बोरियत बहुत जल्दी है। अब मैं आपको शौक नहीं देना चाहता, गलती करो। Good morning, sir. How are you? All good, thank you. Sir, please tell us about your journey. I started my journey in the year 1994. Very tentative, very speculative. Since then, we had a lot of people in our circle who were aspiring to become medical representative. That was the most happening job, and it was in abundance. So I happened to get along with few people, few friends of mine, and we started this job. I got interviewed with at least 3 or 4 companies. I got shortlisted also, but then it happened such that there was one company which took a risk on me, and they called me to Mumbai. Mark India Cosmet Private Limited. I started my first company to work with, and then my journey began. I shifted from Mark to Dr. Reddy's, and then Dr. Reddy's to Novartis, and then Novartis to sister concern of MCure. Almost worked for 11 years. I once this thought crossed my mind that this is not the industry for me. But then I never had a plan B. That's the reason I always found myself pulling along with this industry for a long, long time, 11 years. And then suddenly I thought of coming up with my own idea, entrepreneurial idea. So I started one factory of mine. And I ran that factory for 2 years. Unfortunately, that got a beating. And I had no way to go, then come back to the service industry. So I joined an industry which is called as a real estate industry. From pharmaceutical, 11 years to real estate. I worked as a freelancer as well as on a capacity of a sales head, marketing head. And I took those companies to a greater height. And then there I realized that there is a great potential in me to maybe guide people, counsel people, because I till that point almost 18, 19 years, I had invested in 2 different industries. Then all of a sudden, one friend of mine who got this franchisee of Jet King, he called me and he said that there's a need of a person like you who would handle more than one profile. So I was given 2 profile, personality development and placement officer. So I started my journey of classroom training and understanding the industry from the placement perspective. See, until 19 or 20th year, 19 years gone by, I was recruiting people. So I was not aware of how the training part of these candidates or these job seekers are. But then when I got on the other side of the table where I was counseling them, training them, teaching them, giving them the idea of the recruitment process, I started liking this. And I had so much to give back to the society at large because I'd worked for almost 19 years, must have recruited not less than 200, 250 people odd. Because 150 people were reporting in my last job as a marketing and sales head. So it was a beautiful journey until this happened, and for last almost 9 years, I am into a typical classroom training where I am very close to people like you, students, and that's the reason I stay young because there are students involved, and it's a very noble profession. One thing is for sure that I am enjoying, and I would like to continue this for a long, long time, maybe till the time I die. Thank you. Just like you told us that you take an interview of various of the students. So does the body language matters when you given an interview to an interviewer? See, to an extent, because the first thing that you see is a body language. Unless a person whom you're speaking with has spoken a word, you are only seeing a person, how he walks, how his gestures are, how his facial expressions are,
Does he sport a smile when he enters? Mm. Does he has a body language which is in sync with his words, spoken words? So body language, I believe, takes a chunk. Yes, if you have not spoken a word, I might take you, very different from what you say and what you compliment with your body language. Sir, can you tell me about how a person while giving a presentation look more confident, or just like when someone suddenly example of classroom, if you given us an assignment that you have to spoke on blackboard certain area, topic. yeah, Okay. certain topic You on need to come blackboard back area, on, come to the podium, yeah, platform, podium, and yeah, then speak on a yeah. particular topic. Yeah. So some of just like some of having experience in that public speaking, but some of the students don't have that experience, or they have an anxiety or nervousness. So how does they regulate that nervousness or reduce that nervousness while giving or delivering that thing? See, nervousness is not bad. Okay. Nervousness is directly proportional to the preparation that you do. Mhm. And I strongly believe that preparation is everything. You need to identify what the topic is. You need to work your ground well. What is the topic? Research. Then you have a stipulated time. Let's say if you are given only 30 minutes to speak, then you need to keep your topic very precise, that you are speaking only for 20 minutes, so that there is a 10-minute buffer. If let's say any other topic which goes beyond the time, you are able to still control it with that 10 minutes of buffer time. Now, presentation is going to be a difficult part. Not all are good presenter, and that's the reason not all become entrepreneur, or for that matter get a promotion in their jobs. Presentation skill is a flair. Okay. It is a skill. It is an art both, because skill. I don't feel, I strongly believe that all of us are presenter in a way. You might be a good presenter with your close ones. Right. For example, if you are explaining what your sister or brother is going to buy, be it a gadget, electronic gadget, or maybe a fabric. So you go and explain to her that I have seen this gadget. It has so many good features. It matches your budget. Now something that you are eyeing to buy. Think of this gadget, because see, you become a presenter. Right. You become a presenter for a gadget, or maybe a fabric, or any product or services, even for that matter, few services that you have liked. For example, the services that you get in restaurant. So you say that these people are, they come to you as soon as you sit on the table. They give you menu card. They explain to you how it is Right. cooked, and they give you the best of the best food, on your platter at the earliest. Yes. I mean, not taking much time, and the entire process looks to be very customer centric and very cost effective. So you become a presenter by yourself, and you are actually, all of us are presenter in one or the other way. So presentation skills is very close to marketing skills, and it's a part of marketing. Everybody does a marketing, but nobody is going a structured way. See, when I ask you suddenly to maybe give a presentation on women empowerment, you need to do a lot of research. Right. So while you are having read in women empowerment over a period of time, you would have a lot of elements to speak about women empowerment. But when it comes to, I've asked you, and the spur of the moment you are supposed to speak, it will not be possible, right? Right. You need a preparation time. So a preparation time is a must for presentation. If let's say if you are a beginner, but keep doing it. We never stopped you to make a presentation on all the topics that exist in this universe, and which is of your liking. So let's say we are not sitting, we are not discussing, and you are alone. If you have a topic of your own, you can go explore that topic, do a good research, put it on a PPT. Now you have a lot of AI tools assisting you. So one prompt in an AI platform, you will be able to get the entire guideline, 9 or 10 slides ready, right? For example, Gamma is such a platform. If you type one topic, it will give you 9 or 10, subtopics, and it will create PPT on its own. But the point is, why people fear presentation on podium or when it comes to the audience is because they need to
you know, be very clear that there is a first slide and there is a last slide and there is a sequential slide which forms certain logic. Okay. So if people are not aware, if their knowledge base is not strong, if they do not understand the logic of how to run the slide and talk about something which is very specific, so there actually where the nervousness lies. People are not logical. See, our system is such that education system is such that it allows only to cram more, by heart your lessons, and then go and reproduce in your examination. It restricts you only to that. Your practicals allow you to maybe be creative, right? But then in between you have a lot of reading, of to actually conduct, which nobody follows, which very less, I mean, in population people follow, and there's a reason people who know the importance of reading, they have become, big. But people who can still start reading and prepare few slides for themselves, it will come handy in group discussions, in discussions where you have a very colloquial discussion happening with your friend circle, your peer, and you are contributing with your ideas, because now since you know the topic knowledge, you are able to express it, and people will notice that you are not a person, what you look like. You are deep, you have knowledge base, you can speak, you can express. So it all starts with small things, but yes, presentation skill is very important in a larger picture, because those who have great presentation skills, writing and speaking skills, they are the students, or maybe budding professionals, uh, might be taken for promotions. So Sir, you ask me, how do you kill your nervousness? It is only one thing. Read more so that you have a knowledge base. You can speak, you can prepare PPT. It is purely knowledge driven. okay. Sir, what is the difference between effective communication and just talking between two friends or anyone? See, effective communication and communication, right? While you are communicating with your friends, it is still effective. If you are, as long as you have logic. See, if you are giving me a logic, we are discussing something. And let's say if you are speaking logic, I would like to sit and discuss further. There are families, there are people who do not stop talking only one sentence or one question. They keep on speaking to each other for maybe, the night passes. I know families who can sit right throughout the night and discuss so many things. Why? Because basically they have certain logic, certain perspective. They are strongly opinionated because they are well read. You just cannot have a discussion for passage of time pass, and you still be you're still be you're still meaningful. It cannot happen if, as long as you are meaningful, and it keeps your interest intact, you can endlessly discuss on that topic. But what is effective communication is, the the more you speak, the more it allows the other person to understand. But the more you speak, there are chances that you will fumble, or you will, divulge, and there is confusion created in the mind of the listener. But what possibly effective communication is, you speak less and mean more. For example, we use idioms and phrases. We do not use words and words. We just use a sentence or a couplet, maybe. And with that, we are making the other person realize. For example, where there is a will, there is a way. इच्छा शक्ति जिसकी प्रबल हो उसको सब कुछ मिल जाता है, जहाँ चाहे वहाँ राह है. बराबर. तो आप बड़े आसानी से कह सकते हो कि यार मेरी चाह थी इसलिए मेरे को राह मिली और इसलिए मेरे को मंजिल मिली. Kind of. So effective communication is speaking less, meaning more, but you need to, a classical example is, there is no smart work. Unless you do a lot of hard work and you realize that there are certain ways, certain pathways that you go, and you become smarter doing that particular work. But first you need to go to the through that grill and learn how to become smarter. So communication we can do endless, but when you want to go into effective communication, I think you need to. I'll just like to continue. You're thinking of a question, no problem. See, when it comes to casual talk, there is no limit. Okay. Right. But when it comes to a topic, if you and me we are discussing this, it actually opens your mind. Right. It opens your mind to all those learning that you have done, and
structure them with your wisdom thought, give a logic to it, and then express. So for a casual talk, I think it does not require great mind to speak, but then when it comes to uh, keeping logic intact and speaking on a certain topic, it will definitely require a lot of reading. Sir, have you seen Thomas Shelby, Peaky Blinders series? I'm sorry, Yeah, so there is a one character named Thomas Shelby. He is a means gangster, just like gangster at the time of 18s maybe. So he doesn't talk much, means ज्यादा बात नहीं करता था. Just like उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो खुद को मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट उसका ऐसा था कि वो खुद को ही लीडरशिप एक प्रकार से उसको सिंबलाइज करता था कि इफ अगर कोई लीडर है तो जो उसके तरह हो. जस्ट लाइक उसकी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाला दर्ज ऐसे. हाँ, सो वैसी बॉडी लैंग्वेज रखना इम्पोर्टेंट है या फिर कुछ मतलब ऐसे कुछ है, इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है कि नहीं पड़ता है? देखिए आपने ना प्रश्न में ही 2-3 सवाल पूछ लिए। एक तो आपने कहा लीडर, फिर आपने कहा बॉडी लैंग्वेज में, फिर आपने कहा कि कम कहने वाला। हुँ। तो कुछ चेहरे याद आते हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। अमिताभ बच्चन को देख के याद आता है कि वो लीडर रहे हैं। हुँ। उन्होंने लाइफ में हमेशा लीड किया है, आज भी वो लीड ही कर रहे हैं। जब वो शायद सबसे नीचे लेवल पे चले गए थे, जहाँ पर उनके पास में पैसा-वैसा नहीं था, काम नहीं था, तो उन्होंने घर से निकल के अपने लिए काम माँगा लोगों से। वैसे ही महेंद्र सिंह धोनी को ले लीजिए आप। एक बॉडी लैंग्वेज से और अपने बोलचाल से उन्होंने बहुत कम समझाया, उन्होंने करके दिखाया। तो एक एक्शन लीडर होता है ना? अब आपने जो कैरेक्टर बताया है वो कम बोलता है, अजय देवगन उसमें से आता है जो बहुत आँखों से एक्सप्रेस कर लेता है लेकिन कम बोलता है, काइंड ऑफ। अगर उसे इंटरव्यू में भी देखेंगे तो उसका ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर और इंटेलिजेंस नज़र नहीं आता। तो अगर मैं बॉलीवुड और क्रिकेट की इनके उदाहरण दूँ तो आपको बहुत सारे चेहरे नज़र आएँगे, हम जिस पे बात कर सकते हैं। पर पॉइंट ये है कि जो जो लीडर होता है, वो अगर ज़्यादा बोलता नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो अच्छा सोचता है, उसका एनालिसिस अच्छा है, उसका क्रिटिकल थिंकिंग अच्छा है, उसका क्रिएटिव थिंकिंग अच्छा है, उसका इंटेलिजेंस आईक्यू अच्छा है और अ, आँखों से या फिर चेहरे से उसके एक्सप्रेशन नज़र नहीं आएँगे, लेकिन उसकी सोच से आपको समझ में आएगा कि ये गहरा आदमी है और ये लीडर है। तो किसी एक लीडर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो गंभीर रहे और सिर्फ आँखों से बात करे। मेरे ख्याल से लीडर के लिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हूएवर इज़ अ लीडर, अगर आप चाहे पॉलिटिकल सिनेरियो में देखेंगे आप, सोशल सिनेरियो में देखेंगे, एनवायरमेंटल, आप किसी भी सिनेरियो में देखिए, लोग अगर बात नहीं करेंगे तो बात नहीं समझेंगे। जिनको समझाना है, उनके लिए आपको बात करना पड़ेगा। और आप जब लीडर कहलाते हैं यानी आपके पास ऑटोमेटिकली अपनी एक टीम होगी, लोग फॉलोवर होंगे आपके। आप लीडर है तो फॉलोवर होंगे आपके। तो फॉलोवर आपकी बात क्यों सुनेंगे? जब तक आपके पास में एक नज़रिया ना हो, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ना हो और आपके पास में प्लान ना हो, आपको आपको उनके लिए कोई एम्पावरमेंट देने के लायक ऐसा कुछ नहीं हो, तो कोई आपका फॉलोवर नहीं बनेगा। हम लोग फॉलोवर बहुत जल्दी बन जाते हैं आज के युग में, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि ये ऐसा युग है जहाँ पर आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स नज़र आते हैं, रातों रात गायब भी हो जाते हैं। तो कुछ लोग कुछ चीज़ों के लिए जो अच्छा लगता है क्षणिक रूप में आप उसे फॉलो करते हैं। बट लीडर, अगर क्लास लीडर्स देखेंगे आप और लीडर्स फॉर डिकेड्स अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से उनमें एक अच्छी सोच होती है, उनमें विज़न होता है, उनमें कम्युनिकेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। उनके पास में बहुत सारे, वो रिसोर्सफुल रहते हैं, वो स्ट्रैटेजिस्ट रहते हैं, वो पीपल पर्सन ना होते हुए पीपल एनालिस्ट ज़्यादा होते हैं और उनके पास में मेरे ख्याल से वो दूरदर्शी होने के कारण वो आने वाली चीज़ों को भी देख लेते हैं या फिर परख लेते हैं, इसीलिए वो उसके लिए तैयार रहते हैं। और लीडर अच्छा वो होता है जो एक्चुअली टीम को साथ में लेके चले और टीम के साथ बनकर वो भी आगे बढ़े और टीम में और सारे लीडर्स पैदा करें। सर, जैसे आपने भी लीडर का कहा, सो आपने इतने सारे मतलब आप क्लासरूम्स में रहते हो, मतलब इतने सारे आपने 20 साल हो गए आप इस टीचिंग, मतलब 9 साल हो गए टीचिंग फील्ड में, ठीक है? सो आपको कई ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जिससे आप बात करते हो या फिर क्लासरूम्स में भी आप कभी-कभी उनसे इंटरैक्ट होते हो। सो आपको कभी ऐसा लगता है कि ये बंदे के इसमें, या फिर बहुत से लोग हैं, समझो 10 लोग हैं, उसमें से कुछ लोग को आप लगता है कि ये सामने आके लीडर, ऐसा कुछ परसेप्शन या फिर साइंस रहते हैं क्या जो बिल्कुल। उसको दिखाते हैं कि ये देखिए लीडर है आपने करके? कहा ना बॉडी लैंग्वेज में,
एक चीज होती है लीडर में, और वो सबसे पहली चीज होती है देखने लायक, वो होती है कि पहल करना, ये इनिशिएटिव लेना, ये एक बहुत बड़ा साइन है ये अच्छे लीडर का। या एक लीडर जो बोलते हैं ना, बॉर्न लीडर कहते हैं, वैसे तो मैं नहीं मानता कि लीडर बॉर्न होते हैं, लीडर एक्चुअली बनाए जाते हैं और लीडर बन सकते हैं, क्योंकि ये स्किल और आर्ट दोनों है ना। किसी भी स्किल को आप सीखेंगे और उसको प्रदर्शित करेंगे तो आर्ट दोनों आ जाता है। तो लीडरशिप प्रदर्शित करने की भी चीज है। अब उसके लिए प्रदर्शन कैसे आप देखेंगे, उसको आंकेंगे कैसे? तो बॉडी लैंग्वेज से मालूम पड़ता है। मैं जैसे क्लास में चला गया, मैं पूछता हूँ कि कौन है सबसे पहले जो स्टेज पे आ जाएगा। तो कुछ लोग बेमकसद आ जाते हैं, उन्हें नहीं पता रहता, और कुछ लोग बहुत टाइम लेते हैं, कुछ लोग एक आने के बाद में आते हैं। राइट। तो जो पहले आते हैं, मैं उनसे वो सवाल डेफिनेटली करता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में उसने पहल किया तो लीडर है। तो मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि मैंने बुलाया और आपको मकसद मालूम नहीं था, तो आप आए ही क्यों? तो कहता है कि सर, आप आए क्लास में, आप हमारे टीचर है, ट्रेनर है, आपने बुलाया है, आज मैं यहाँ पर गवाऊँगा क्या? जो भी आप सिखाएँगे वो सीख के ही जाऊँगा। लेकिन अगर ये मैं पहल नहीं करता और कोई दूसरा करता, तो शायद मेरे को खराब लगता, क्योंकि मेरे को किसी भी चीज़ में लीड लेना और आगे बढ़ना। ओके। तो जो लीड लेना है, इनिशिएटिव लेना है, पहल करना है, ये लीडरशिप की पहली निशानी होती है। फिर आपके साथ में नुकसान ही हो जाए, नुकसान क्या होगा? आप क्लास में लोग हँसेंगे। आपको ये भी बता दूँ कि जितने लोग क्लास में हँसते हैं, वो फर्स्ट बेंचर्स ही होते हैं। लास्ट बेंचर्स को मालूम रहता है कि यार इसने पंगा लिया, और पंगा लिया तो इसको इसकी आदत ही है। और जिसकी आदत होती है पंगा लेने की, जो रिस्क टेकर रहता है, उसको अ, कम एज में अगर वो रिस्क ले रहा है और कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है और उसको मालूम है वो क्या कर रहा है, मेरे ख्याल से वो सबसे आगे जाता राइट। है। आज आईआईटी की भी कहानी यही है। जो बैक बेंचर्स है, वो उन्होंने अपना स्टार्टअप। स्टार्टअप बहुत सारे ज्वाइन कर लिए और अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। और जितने भी फ्रंट बेंचर्स थे, वो लोग उनके कंपनी में काम कर रहे हैं। सीईओज हैं, एमडीज हैं। नहीं, वो शायद उनकी कंपनी में ना हो, लेकिन किसी और कंपनी में, बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप जो रिस्क लेता है, उसका मतलब ये, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है ना, एंटरप्राइजिंग इस वर्ड से आया है, जिसका मतलब है टू टेक रिस्क। सर ऐसे तो आईआईटीज में मैं अभी ट्रिपल आईटी में गया था, तो मैंने वहाँ देखा है सभी जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे एज के सेकेंड ईयर के, उनके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, but they have technical skills just like in our other colleges or well colleges just like GHRC। so हमने एक बात नोटिस की है कि वहाँ पे जो लड़के हैं, they don't ask permission to come inside the class if as instructor is teaching। so I means मेरे को ये अच्छा नहीं लगा, just like he is the person who is teaching you and you disrespect her by just opening and door and sitting down and if they अगर उनके पास कॉल आया, वो डायरेक्टली बाहर जाके ना सर से बात करे, सर मेरे को बाहर जाना नहीं, वो डायरेक्टली उठ के चले जाते हैं। सो एक प्रकार से डिसरिस्पेक्ट हुई, तो इसके ऊपर क्या ओपिनियन होगा? नहीं, अब अगर वो कॉलेज का कल्चर ही वैसा है, अब देखिए, मैं बहुत सारे आईआईटीज में जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे बात होती है, तो मालूम पड़ता है कि बच्चे दिन भर कैंपस में रहते हैं, जहाँ पर प्री रेसिडेंशियल कॉलेज होते हैं। आईआईटी बहुत सारे होते हैं, आईएसबी हैदराबाद उसमें से एक है, जहाँ पर बच्चा रात को भी हाफ पैंट में घूम रहा होता है, एक झोला लेके, उसके पास एक नोटबुक होता है, उसके मन में जहाँ आता है उसको उसको वो टाइम टेबल देखता है, और लर्निंग ड्रिवन रहते हैं, लर्निंग एजाइल रहते हैं। उनके दिमाग में रहता है कि मेरे को मशीन लर्निंग करनी है, मेरे को आज कोई ड्राइंग समझना है, मेरे को आज कुछ मान लीजिए कोई एक अतरंगी सा सब्जेक्ट है जो उसके उसका सिलेबस का हिस्सा नहीं होगा, है ना? तो वो उसको समझना है, तो वो जाएगा उस क्लासरूम में और वो जाके बैठेगा। जैसे आपने थ्री इडियट्स में सुना होगा कि ज्ञान तो हर जगह, रणछोड़ दास जी बाबा कहते हैं कि ज्ञान तो सब जगह बट रहा है, ये आप पे निर्भर है कि आपको क्या लेना है। और एक्चुअली ये एक स्टूडेंट पे निर्भर होता है। टीचर तो आएंगे आके पढ़ा के चलेंगे, लेकिन अब बात रही कि वो बच्चे का इंटरेस्ट और उसको फोन आना। ज्यादातर मैं, आप मेरे क्लास के हिस्से में रहे हो, आप मेरे क्लास के हिस्से में थे, तो आपको अच्छे से मालूम है कि मैं फोन अलाउ नहीं करता कि वो टेबल के ऊपर रहे, और मैं वाटर बॉटल भी अलाउ नहीं करता। तो ये रूल मेरे हो गए, ये कॉलेज के रूल नहीं दिए। अच्छा, इसमें मैं अपने आप को बहुत बड़ा साबित करना चाहता हूँ या अलग बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब तक आप प्रोफेशनलिज्म में के तौर तरीके नहीं सीखेंगे, तो आप प्रोफेशनल नहीं होंगे। अभी बहुत सारे बच्चे जो पढ़ के चले जाते हैं और वो ऐसे ही बिहेव करते हैं, तो उनके प्रमोशन बड़े प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। उनको लोग सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि वो कैजुअल एटीट्यूड में रहते हैं। अब अगर ये आपका सेकंड नेचर बन गया कि आप हर जगह कैजुअल नजर आएंगे, तो शायद प्रोफेशनल लाइफ में आपकी जगह नहीं, और बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
आपको कहीं तो भी एक जगह सीमितता मिल जाएगी, आप स्टंटेड रह जाएंगे। अब जो ये समझ जाता है कि मेरे को एक कर्टसी होती है, एक मैनरिज्म होता है जो प्रोफेशनलिज्म का हिस्सा होता है और वो सीखना है, वो करना है, हम्म, ठीक है। अब वो टीचर को फर्क नहीं पड़ता है, वो स्टूडेंट को फर्क नहीं पड़ता है, हम्म, तो ये क्लास ऐसी होगी। इसका मतलब ये है कि टीचरों ने मान लिया है उस कॉलेज के कि बच्चा आए या जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मेरा जहाँ से वो लेक्चर पकड़ेगा और वो समझ गया तो ठीक है, नहीं तो वो आएगा मेरे पास हम्म, और आएगा तो मेरे को जो बताना है वो बताऊंगा। हम्म, लेकिन बच्चे के नजरिए से जिस क्लास का उसको टीचर समझ में ही नहीं आता है हम्म, तो वो उसमें शायद ना जाएगा और वो कहीं और जा रहा है और इंटरेस्ट है, एज लॉन्ग एज लर्निंग एजाइल है, वो लर्निंग स्प्री में है, तो मेरे ख्याल से कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आपको टीचर की जरूरत नहीं है। शायद आज आपके पास में लॉ ऑफ हम्म, अबंडेंस सप्लाई के तहत इतना नॉलेज, इतना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेट में, और कमाल कर लिया, तो आपको जरूरत क्या है टीचर की? बगैर टीचर के भी बहुत लोग खुद सीख रहे हैं। आपने पाइथन सीखा होगा तो आपने यूट्यूब से सीखा, राइट, है ना? आपके पास में ऐसी बहुत सारे पोर्टल्स है, यूडेमी, अनअकैडमी और ऐसे कितने सारे इंटेलीपैथ्स, वेबसाइट्स काइंड ऑफ। तो आप कर क्या रहे हैं वहां पर जाके? सीख रहे हैं और अपना स्किलिंग को आप लेके जा रहे हैं ऊपर। बट देन इसको प्रैक्टिकलिटी पे लाना बहुत जरूरी होगा। हम्म, अगर वो बच्चा मान लीजिए यही कर रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर वो प्रोफेशनलिज्म में एक कॉर्पोरेट में काम कर रहा होगा और उसकी कैजुअलनेस के कारण हो सकता है उसके उसकी लाइफ वहीं तक सीमित हो जाए। okay. So what are the soft skills which a fresher should have in his? सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है फ्रेशर्स में जो कमी दिखती है, और अब ये जनरेशन पर जनरेशन जब जब मैं पढ़ा रहा हूँ हर सेमेस्टर में, तो मेरे को एक जो अटेंशन स्पैन है हम्म, वो बहुत कम है। आप लोग को बोरियत बहुत जल्दी होती हाँ, है, आप लोग किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते लंबे समय के लिए, राइट, और डिस्ट्रैक्शन बहुत है। उसी का कारण है शायद कि आपके अटेंशन स्पैन कम हो गया और बच्चे ओपिनियन नहीं बना पा रहे। हम्म, देखिए, आप मैं एक ऐसे जनरेशन का व्यक्ति हूँ जहाँ पर, या स्टूडेंट कह लो कि मैं भी आज भी स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं आज भी सीखता हूँ और बच्चों से भी सीख रहा हूँ। बट देन मैं उस टाइम पे ऐसा लगता था कि मेरे पास में कोई अच्छा कोई ज्ञान का चीज आ जाए तो मैं पकड़ के रखता हूँ, हम्म, और वो आज भी मेरे साथ है। लेकिन आजकल के बच्चे शायद बहुत ज्ञान मिलता जा रहा है तो उनका रिकॉल शायद कम हो रहा हम्म, है, या फिर उनका इंटरेस्ट बहुत अलग अलग वेरिएड फील्ड्स में चला जा रहा है। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि आज बच्चा पाइथन कर लेगा और फिर नेक्स्ट डे पे वो जावा पे भी कूद जाता है, फिर उसको लगता है हाँ, यूआई यूएक्स ज्यादा अच्छा है, फिर वो पाइथन करके छोड़ दिया रहता है, उसके बाद में पाइथन पे जाता है तो फिर उसका लाइब्रेरी आर बच जाता है, हम्म, तो किसी को सिर्फ फ्लटर में एक्सपर्ट। अभी प्रॉब्लम क्या है? अटेंशन स्पैन की है आजकल के बच्चे, और उसको आप ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ये आप ही पे निर्भर है। टीचर आएगा पढ़ा के जाएगा, लेकिन एक स्टूडेंट को ये समझना होगा कि मैं अपना लाइफ के साथ कर क्या रहा हूँ, मेरा करियर पाथ पे क्या है। और ये बहुत जल्दी अगर वो जान ले कि मैं इंजीनियरिंग में, अगर माँ बाप से धक्का देकर भेजा भी गया हूँ, तो मैं इंजीनियरिंग में क्या चीज कर सकता हूँ। मेरा एनालिटिकल स्किल अच्छा कर सकता हूँ, मेरा क्रिएटिव थिंकिंग स्किल अच्छा कर सकता हूँ, मेरा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल अच्छा कर सकता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये इंजीनियरिंग के 5 ऐसे स्किल्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम्म, और ये सॉफ्ट स्किल्स में भी आते हैं। अच्छा, एनालिसिस करना है आपको, आप जरूरी नहीं कि आप प्रोफेशनल लेवल पे ही करोगे और आपको हमेशा बोला जाएगा कि एनालिसिस कर रही है प्रोफेशनल लाइफ का। हम्म, आपको डेटा दिया जाएगा, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा ह्यूमन बीइंग का भी। हम्म, क्रिएटिव थिंकिंग पर्सनल लाइफ में भी आता है, हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग पर्सनल लाइफ में भी आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग कब करेंगे? जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर प्रॉब्लम में अगर बैठे रहोगे तो शायद प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही करते रहोगे तो फिर प्रॉब्लम से ऊपर नहीं आओगे, नहीं, सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, उसके काम करना पड़ेगा। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ मोटे तौर पे कि biggest soft skills which today's generation require is, I believe, empathy, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस के तहत आपको बहुत सारे स्किल्स आ जाते हैं, जिसमें इंटरपर्सनल स्किल्स आता है। हम्म, हम किसी के साथ फर्स्ट ईयर में अच्छे रहते हैं, लेकिन फाइनल में आते आते उसके साथ दोस्ती टूट जाती है, ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है। हाँ, तो आई थिंक इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आएगा, जिसमें एम्पैथी आता है, जिसमें इंटरपर्सनल स्किल्स आता है, और लिसनिंग स्किल्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और लर्निंग एजाइल रहना, ये कुछ है जो सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं। और मेरे को ये लगता है, बहुत स्ट्रांगली लगता है, कि बच्चा अगर ये रियलाइज कर ले कि ये स्किल्स पे अगर वो मास्टरी ला ले तो उसका बहुत अच्छा हो सकता है, यकीन। सर, मैंने आपके मतलब आपने मेरे को ह्यूमैनिटीज पढ़ाया था, मीन्स प्रोफेशनल के आपके, मैंने एक लेक्चर में पढ़ा, आपने बताया था कि यू क्रैक एसएसबी, हाँ सो जी, उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपके? मैं एसएसबी के लिए
तैयारी कर रहा था आइसोलेशन में। मैं कॉम्पिटिटिव सक्सेस रिव्यू ही मैगज़ीन आती थी तो उसमें पढ़ता था। बहुत सारे अच्छा लगता था, हालाँकि वो बड़े जार्गन लगते थे वो टाइम पे। मैं उसके लिए तैयार नहीं था। बट देन मैंने कोचिंग लगाई थी और वो कोचिंग लगाते-लगाते मैंने ये क्रैक किया था एसएसबी 18 एसएसबी इलाहाबाद में इंटरव्यू के लिए गया था। लेकिन मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप हर प्रोफ़ेशन के लिए नहीं बने और हर प्रोफ़ेशन आपके लिए नहीं बना। तो मैं वहाँ चला गया। मैं वहाँ गया तो मेरा चेस्ट नंबर 26 था। मेरे साथ में ही रेलवे स्टेशन में ही प्लेटफ़ॉर्म पे ही एक बंदा मिला था, वो अपने दोस्त के साथ आया था। उसको 5वाँ मेरे ख़्याल से मौका था, अपॉर्च्युनिटी था। उसका उस साल हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ होती है जिसमें आप अच्छा कर लेते हैं। जैसे मैं फिज़िकली बहुत फिट हूँ तो मैंने अपने ग्रुप टास्क बहुत अच्छे किए। मेरा एप्लीकेशन टू लॉजिक, अप्लाइंग लॉजिक विद ऑल दोज़ टास्क, ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क बड़ा अच्छा क्लिक हुआ वो। तो मेजर गुंडड़ा थे 33 इयर्स के, उन्होंने बुलाया और पूछा भी कि चेस नंबर 26 आप तो बड़े पॉपुलर हो। आपने क्या ऐसा किया? आपका क्या बेकार हुआ? क्या अच्छा हुआ बताओ? मैंने बताया कि मेरा पर्सनैलिटी टेस्ट जो इंटरव्यू था वो ठीक-ठीक हुआ है। ग्रुप हाँ, ग्रुप में ये तो बहुत अच्छा हुआ, बोलने की ज़रूरत था। फिर एक हमारा एक लॉजिकल रीज़निंग का अलग से एक होता है टेस्ट। मेरे को लगता है कि मैंने बहुत ऑब्सेस्ड वाली सिर्फ़ डिफेंस की ही स्टोरी डाली है, तो एक वो कारण हो सकता है। कारण कुछ भी हो सकता है, मेरा टेम्परामेंट शायद डिफेंस के लिए नहीं बना है। मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी मद्रास के लिए अप्लाई किया था, मैं सोच रहा था कि 5 साल वहाँ काम काम करूँगा, उसके बाद फिर मैं अपने सिविलियन वर्ल्ड पे आके यहाँ पर कुछ एक्सप्लोर करूँगा। ये मेरा इनिशियल थॉट था। और मैं लिखता अच्छा था इसीलिए शायद बोलना और लिखने में फ़र्क होता है। मैं लिखता अच्छा था इसलिए मेरा लिखने पे बड़ा कॉन्फिडेंस था, लेकिन कुछ चीज़ गई होगी मेरे अगेंस्ट में और उसके बाद फिर मैंने कान पकड़ा कि मैं अब डिफेंस के लिए नहीं जाऊँगा क्योंकि शायद मेरा टेम्परामेंट ही नहीं है। लेकिन ऐसा कहते हुए मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि जो बंदा मेरे को मिला था रेलवे स्टेशन में और जिसका ट्रैक क्लिक हुआ ये 5th अपॉर्च्युनिटी इस नंबर पे, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ें जो आपको नहीं आती पहली बार, तो आपने गिव अप नहीं करना चाहिए। शायद आप मैं खड़ा रहता और लड़ता और ट्रेनिंग करता, तो शायद मैं डिफेंस का हिस्सा होता। बट आज भी मेरे में डिफेंस का बहुत कुछ है। जैसे मैं सेल्फ डिसिप्लिन हूँ, अगर किसी ने मेरे को समय पे बुलाया है, उस समय के 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ और अपने काम करना खुद पसंद करता हूँ। आत्मनिर्भरता एक चीज़ होती है लेकिन निर्भर हो जाना, ये बहुत ज़्यादा नहीं करता। हाँ, मगर मेरी इच्छा है कि मैं ये संदेश यहाँ से डेफ़िनेटली दूँ कि अगर आप पहली बार फ़ेल हुए तो आप किसी एक चीज़ के लिए फ़ेल हुए। आप 2 बार फ़ेल होके देखिए आपको 2 नई चीज़ सीखने को मिलेगी। आप 3 बार फ़ेल होते तो आपको 3 चीज़ें नई सीखने को मिलेगी कि आपने पहली बार ये गलती की थी, दूसरी बार वो गलती ना करते हुए दूसरी कोई गलती हुई थी और तीसरी बार कुछ अलग प्रकार की गलती हुई थी। तो गलतियों से बनता है। मैंने अपने आप के लिए मान लिया कि मैंने ये गलती की और मैं फिट नहीं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आज का युग ऐसा है कि यू ट्राई अंटिल यू सक्सीड, fail n number time till you succeed. And the definition of success is very simple. Uh, if you have not tried failing for the nth time, you will never succeed. Well, very simple. आप फेल होते जाओ, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। हाँ सर, जैसे ऐसे देखा भी गया है कि मोस्ट ऑफ द लीडर्स या फिर एंटरप्रेन्योर्स पहले फेल हुए, देन उसके बाद उनका जो सक्सेस रेट है बहुत अच्छा। जैसे एडिसन, दे मतलब उन्होंने 99 बल्ब बनाया पर उसका उनका 100 जो बल्ब था वो सक्सीड हो गया। और बहुत सी जैसे एप्पल की मतलब जो स्टीव जॉब्स है, उनका एक आईपैड का था, आईपॉड का था, उसमें स्पेस का एक इशू आ रहा था, मे बी आपने सुना होगा। सो उसके अंदर है ना, आईपॉड को उनको कॉम्पैक्ट बनाना था, जस्ट लाइक कार्ड के लेंथ थोड़ा बड़ा। सो उसमें है ना स्पेस थी। इंजीनियर सब बोल रहे थे कि उसमें स्पेस है और स्पेस कम नहीं कर सकते, बट स्टीव जॉब्स क्या बोले, ये इसमें स्पेस और कम करो। उनके पास फिश पॉट पड़ा था, उन्होंने वो आईपॉड को फिश पॉट में डाल दिया। इसमें फिर जो आईपॉड अंदर चले गया, वाटर उसमें अंदर चले गया। वो बोले इसमें से बबल्स आ रहे हैं, इसमें एयर है, स्पेस है, बोले इसको और कॉम्पैक्ट कर, तब जाके उनका आईपॉड सक्सीड हुआ। Lovely. तो इससे संदेश ये जाना चाहिए कि जो मार्केट का डिमांड है ना, वो डिमांड को समझो और रिसर्च में आप जितने इनोवेशन और क्रिएटिविटी ला सकते हो वो लाते रहो, क्योंकि एक ही काम कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब एक और डेफिनेशन बता देता हूँ आपको कि किसी चीज़ को बेहतर बनाना। मान लीजिए अगर ये फ्लावर पॉट है और ये अच्छा लग रहा है, आजकल तो डॉफ प्लांट्स वगैरह काफ़ी आते हैं, है ना? इससे भी छोटा अगर आ जाए,
है ना? जो आपके मे बी कार में या बाइक में आ जाता है। तो कहीं चीज़ों को बेहतर बनाना ये एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक डेफिनेशन ओके। है। आप गाड़ी चलाते थे, पहले जो गाड़ी आती थी वो 4 स्ट्रोक बाइक आती थी। अभी देखिए आपके पास, आप इग्निशन चालू कीजिए आप, BS6। तो किसी भी चीज़ को बेहतर बनाना ये एक इनोवेशन का हिस्सा होता है, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप का हिस्सा होता है, इसलिए तो नए-नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। सर जैसे अभी हम टाइम मैनेज कैसे करें, जस्ट लाइक वी हैव क्लासेस फ्रॉम 9:30 टू 5:30, देन कुछ की जैसे मैं तो जिम नहीं जाता, बट कुछ लोग हैं जो जिम जाते हैं, उन उन 8 बजे 8:30 बजे हो जाते हैं, उनके बाद फिर घर को भी टाइम देना पड़ता, नहीं बोले तो भी घर को देना पड़ता, खाना खाना खाए, ये 10:30 11 बज गए। अब इसमें एक्स्ट्रा स्किल्स कैसे सीख सकता है, बिकॉज उसके पास प्रैक्टिकल्स भी है, थियरी भी करना है उसे। देखिए, अगर आपको मान लीजिए एक सेमेस्टर में 30 घंटे का लेक्चर होता है, तो इसको अगर प्रैक्टिकली आप 75% से अगर कैलकुलेट करेंगे, तो लगभग 21 से 22 लेक्चर ऐसे आते हैं जो आप कर सकते हैं, बाकी के 7 या 8 लेक्चर आप नहीं कर सकते। नहीं करें तो भी आपको कोई डिटेंशन लिस्ट में नहीं डालेगा। 75% अटेंडेंस मतलब आप 75% कंपोनेंट निकालो 30 लेक्चर का, आपको मिल जाएगा। 7 एक लेक्चर है मेरे ख्याल से जो आप नहीं करें तो भी चलता है। अब वो 7 लेक्चर मतलब आपको ऐसे प्लान करने हैं, किसी एक सब्जेक्ट में बोल रहा हूँ। अब आप पूरे वीक का देख लीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट है जिसके आप एक-एक करके 7 हफ्ते नहीं करेंगे। 7 हफ्ते यानी ऑलमोस्ट 2 महीने। 2 महीने। ये आप जल्दी जाने का प्लान कर सकते हैं या लेट आने का प्लान कर सकते हैं। वही टाइम है आपके पास एक स्किलिंग का। ओके। और दूसरा टाइम इलोन मस्क के पास भी नहीं होना चाहिए, जेफ बेज़ोस के पास भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वो लोग हैं जो एक्सरसाइज करते-करते, इलोन मस्क नहीं करते हैं ज़्यादा, लेकिन जेफ बेज़ोस एक्सरसाइज करते हैं और इंश्योर करते हैं कि अपने बच्चे उनके साथ में वो ब्रेकफास्ट करें। उसके बाद में जेफ बेज़ोस 10 बजे मीटिंग रखते हैं और 10 से अगर लेट हो गया, 11 हो गया तो नहीं रखते। उनके लिए क्वालिटी टाइम वो होता है जब वो ऑफिस जाके शुरुआत करेंगे, है ना? जेफ बेज़ोस का बड़ा फंडा क्लियर है। तो ये जितने भी बड़े लोग हैं, इन्होंने अपने-अपने प्रिंसिपल्स बना के रखे, रूल्स बना के रखे और वो टाइम निकालते हैं। जैसे टिम टॉड एक ऐसे यूट्यूबर है जो बड़े फैंसी है इलोन मस्क की चीज़ों, स्पेसएक्स के लिए। तो एक बार इलोन मस्क उनको अपने स्पेसएक्स में एक एरोप्लेन के बारे में बता रहे थे, उसके डिज़ाइन के बारे में। टिम टॉड ने इमीडिएटली आइडेंटिफाई करा के दिया कि आपके ये डिज़ाइनिंग में फ्लॉ है और वो बोलता गया, ये बंदा चुपचाप होता गया। इसका मतलब ये है कि आपको टाइम निकालना होगा उसके लिए, एक बोल के आया और अगर वो बकवास कर रहा है तो आप chuck him, go do something else which is productive. बट पॉइंट ये है कि इवन इंडियन एक लड़का है जो उसके डिजाइन को फिर से बोला कि आपका ये मेक में प्रॉब्लम है, तो ट्विटर के तहत उन्होंने वापस रिप्लाई किया कि वी विल रेक्टिफाई इन आवर नेक्स्ट मेक। तो पॉइंट क्या है कि आप कहाँ देखते हैं? आप अगर प्रोडक्टिविटी, प्रोग्रेस, ग्रोथ और कंस्ट्रक्टिविटी में अगर ध्यान देंगे तो शायद आप निश्चित बनेंगे। 24 घंटे सबके पास है, लेकिन हम में से कोई तो एक ऐसा है जो 24 के 24 घंटे अच्छे से यूटिलाइज कर रहा होगा, इसलिए शायद वो प्रोडक्टिव है, इसलिए शायद वो ग्रोथ पाथ पे है। अब में से कई लोग हैं जो शायद समय का मूल्य नहीं जानते। समय का मूल्य जानिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेरी माँ अक्सर कहती थी और कहती है आज भी, जिसने समय का मूल्य किया है, शायद समय उसका मूल्य करके उसको मौका देगा। अपॉर्चुनिटी भी शायद वो समय के को देखकर ही आती है। आप पहचान पाओ और आपके इंटरेस्ट बेस से आप उसको पकड़ पाओ और तो आगे बढ़ोगे आप। वरना अब इसको मैनेज कैसे करना है, मेरे ख्याल से मैं इसका आंसर 2 टूक दे देता हूँ। आपके पास में एक अर्जेंट वर्क होना चाहिए और एक इम्पोर्टेंट वर्क होना चाहिए। तीसरा वर्क नो में होना चाहिए। कोई भी तीसरा वर्क आए तो नो होना चाहिए। अगर आपके पास कोई वर्क है जो आपके अभी आपको निपटाना है अर्जेंट, तो शायद वो आपके लिए प्रायोरिटी होगा। सेकंड वर्क जो इम्पोर्टेंट है थ्रू आउट द डे आपको करना है और खत्म करना है। इसके अलावा तीसरा काम आपने ना बोला बस करो। और फैमिली समझती है शायद आपको क्या आप क्या कर रहे हैं और वो आपके व्यवहार से समझ जाती है। तो आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आप 10 बजे क्यों आए। अगर आप स्विमिंग कर रहे हो तो करो, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। आप स्किलिंग कर रहे हो तो करो, मगर जब आप कुछ सीखते हैं ना बाहर से, तो फॉर गॉड सेक आपने एक लाइव प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप पे काम करना ही करना चाहिए, क्योंकि पढ़ना काफी नहीं होता है। ये पढ़ाई आपको कहीं अप्लाई करने के लिए अगर काम आ रही है और अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, ये अगर आपने नहीं जाना तो शायद आपकी पढ़ाई ऐसी
सर एक रिज्यूमे, आइडियल रिज्यूमे का डेफिनेशन क्या होगी? वो रेज्यूमे जो आप शुरू से लेकर आखिर तक डिफेंड कर सकते हो, जिसपे ओके। आपके पास लॉजिक है, हम्म। आपके पास आंसर है और लॉजिकल आंसर, वो सबसे अच्छा रेज्यूमे फॉर्मेट होता है। इस दुनिया में जितने भी फॉर्मेट हैं जो अवेलेबल है ऑनलाइन, वो सब बेकार है। और इस दुनिया में जितने भी एटीएस रेज्यूमे फॉर्मेट के वो स्कोर रील्स, देते हैं, वो भी टेम्पलेट्स। मिथ्या है। आप एक रेज्यूमे बनाओ और आप 2-3 प्लेटफ़ॉर्म पे जाके अपना एटीएस स्कोर चेक करो, आपको अलग-अलग नंबर्स आएँगे। इसका मतलब है कि लोग अपना माल बेच रहे हैं। आप ऐसे युग में हैं जहाँ पर एआई से आप बच नहीं पाएँगे, तो आप उससे भी नहीं बच पाएँगे। बट आइडियल रिज्यूमे ऐसा कुछ होता नहीं है। आइडियल रिज्यूमे जॉब डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिक कीवर्ड्स अगर आपके इसमें है तो वो है स्पेसिफिक, वो सबसे अच्छा है। और जानकर कि अगर मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन देखा है और मैं कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, उसके बारे में मेरा बेसिक फंडामेंटल बड़ा क्लियर होना चाहिए। और दूसरा, वो जो क्वेश्चन पूछेंगे वो लगभग रिज्यूमे को देखकर ही पूछेंगे। तो आपके एक्सपीरियंस, आपके अचीवमेंट्स, आपके स्किलिंग, ओरिएंटेशन, साइकोलॉजी, ये 4-5 चीज़ें जो बहुत काम करता है। तो आइडियल रिज्यूमे नाम की चीज़ नहीं होती है। सबसे अच्छा रिज्यूमे वो जो आप शुरू से आखिरी तक उस पे आंसर दे पाए और लॉजिकल आंसर दे पाए और कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाए। हो सकता है कि आप पहली बार में जो बोले होंगे और आखिरी क्वेश्चन में अगर वो कभी-कभी रिस्ट्रक्चर करता है इंटरव्यूअर, तो वो रिस्ट्रक्चरिंग में आप फँस ना जाएँ। इसलिए कंसिस्टेंसी को भी ध्यान देना पड़ता है कि पहले जवाब मेरा ये था और आखिरी में मेरा जवाब ये रहेगा। सर बट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं क्या सर? 100% होते हैं। मेरे संदर्भ में बताता हूँ, मैं मल्टीनेशनल कंपनी के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया था। रात भर हम लोग बस से गए, मेरे साथ में मेरी फीमेल कोलीग भी थी, उसे भी नोवार्टिस मल्टीनेशनल में काम करना था। हम दोनों मतलब कैसे सोए होंगे मालूम नहीं, वो अलग सीट, मैं अलग सीट और बस पूरा धक्का-वक्का दे रहा है। लेकिन सुबह जाके हम लोग वहाँ पर इंटरव्यू दिए और मेरा हुआ, उसका नहीं हुआ। तो मैंने उसके लिए पूछा, मैंने बोला सर बड़ा अफ़सोस से पूछ रहा हूँ कि हम दोनों आए थे और मेरे को नहीं लगता कि वो पोटेंशियली मेरे से भी कम है। तो उसका क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा कि जो सवाल मैंने पूछे थे, उसी को रिस्ट्रक्चर करके दूसरे एक हायरार्की में हायर मैनेजमेंट में किसी ने पूछा था और उसके आंसर्स में कंसिस्टेंसी नहीं। ओके। कंसिस्टेंसी के दो माइंड मतलब है, तो एक तो ये जो आप पहले बोल पाए, आप दोबारा बोल पा रहे हैं क्या, क्योंकि आप आपके आंसर है। हाँ। और दूसरा वो कि आप किस हद तक अपनी कंसिस्टेंसी बता रहे हैं जॉब को लेके। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पहली बार बोलने के लिए बोला, आप पहली बार बोलने के लिए बोला तो दूसरी बार एक्सपोज हो गए आप, और दूसरी बार एक्सपोज हो गए तो कोई भी आपको लेगा नहीं। बस यही कहानी थी उस लड़की के साथ। अदरवाइज जो आप बोलते हैं, अगर वो आपने बहुत लॉजिक रखा ना, एक लॉजिक रखा आपने आपके आंसर में, तो मेरे ख्याल से आप सक्सेसफुल रहेंगे। लाइफ इज ऑल अबाउट लॉजिक। सर एक कोई आइडियल है, मतलब एक बताइए कि एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, हाँ। उसे सेकंड सेम में या फिर फर्स्ट ईयर में उसे खुद का मतलब एक इंटर्नशिप करनी है, हाँ। तो उसका कुछ जैसे उसके क्या स्किल्स उसमें डेवलप करे, सॉफ्ट स्किल, टेक्निकल स्किल्स, ऐसे कुछ? देखिए, टेक्निकल स्किल आपको पहले जॉब दिलाता है और सॉफ्ट स्किल्स आपको प्रमोशन दिलाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप यहाँ पढ़ने आते हैं कॉलेज में और टेक्निकल, पूरा सिलेबस आपका टेक्निकल है, तो आप जो पढ़ रहे हैं वो किधर यूज होता है वो ध्यान में रख के पढ़िए। आपको अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रैक्टिसेस कुछ भी ऐसा आता है, कोई एक सब्जेक्ट आता है, तो ये ड्राइंग प्रैक्टिसेस कहाँ काम आएगा, मैं किधर करूंगा, और उसके लिए सॉफ्टवेयर कौन से लगेंगे। आप पहले दिन से क्यों नहीं ये तय कर लेते कि मैं अगर मैकेनिकल कर रहा हूं तो मेरे पास सॉफ्टवेयर कौन कौन से सीखने पड़ेंगे जो इंडस्ट्री में काम आने वाले हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिकल कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से सॉफ्टवेयर है जो मेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज अ डोमेन, एज अ कोर कंपनीज में अगर जाऊंगा तो काम आने वाले। एमबीए में अगर आप एचआर करना चाहते हैं तो आपको एचआर के पूरे सॉफ्टवेयर मालूम होने चाहिए, और आपको पूरे सॉफ्टवेयर आते हैं तो आपके लिए इंटरव्यू सबसे आसान हो जाएगा। तो आप पढ़ना मत बोलो, आप ये बोलो कि मैं, वो कहते हैं ना, रिक्रूटर कहते हैं व्हाई वी शुड हायर यू और व्हाई शुड वी हायर यू। तो यू शुड हायर मी बिकॉज whatever it takes in terms of software and knowledge base, I have it and I have a hands-on practice. So right from day one, you will incur less of time on me as a resource to get the work done. तो आपको वो समझ में आना चाहिए, इंडस्ट्री जो मांग रहा है वो आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं, और आपके पास 4 साल है, आपके पास 8 सेमेस्टर है, तो आप जो पढ़ रहे हैं उसके लिए आप क्या कैसे पढ़ के पास होते हैं ये आपको मालूम है। मगर आज का बच्चा कैसे पास होता है ये बच्चे को भी मालूम, अच्छे से हमको भी मालूम है।
पॉइंट क्या है कि आप जो पढ़ रहे हैं उधर पे ध्यान दो ना। आपको तो ओवरनाइट आप पढ़ लेते हो, जाके रिप्रोड्यूस कर लेते हो, तीसरे दिन याद भी नहीं रहता वो चीज, लेकिन जो याद रखने वाली चीज है वो इंडस्ट्री की है, वो तो कर लो, पक्का कर लो। कोई बुक्स बता दीजिए जो फर्स्ट ईयर पे या फिर सॉफ्ट स्किल्स पे या फिर किसी ऐसे चीज क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ा सके या फिर रियल वर्ल्ड में हम खुद की पर्सनालिटी डेवलप कर सके। जस्ट लाइक मैंने पढ़ी थी फाइनेंस, मुझे फाइनेंस बुक पसंद है, तो मैं रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी और इन्वेस्टर स्टोरी, ये 3 बुक्स पढ़ी है, बट अभी स्टार्टिंग इलॉन मस्क अभी मेरी रनिंग है। ठीक है, मैं आपको बहुत एक सिंपल जवाब देता हूँ। अभी मैं अगर कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाऊं तो बहुत सारे लोग हैं, वीडियोस इतने आ रहे हैं कि ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो। कोई भी बुक पढ़ लो, आप बुक पढ़ो तो, और एक बुक पढ़ो और पढ़ते चले जाओ, रुको मत। आपको मालूम है, आपने जितने भी नाम लिए, जेफ बेजोस या फिर मार्क जकरबर्ग ले लो, आपने स्टीव जॉब बोला है, इलॉन मस्क बोला है, जितने भी नाम, इनको किताब पढ़ने का कीड़ा है। कॉमन ट्रेड। और अगर वो एक किताब कभी कभी 2 दिन में खत्म, इतना पढ़ते हो, तो आप जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा इवॉल्व होंगे। एक लाइन में आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। मैं कोई किताब नहीं बताना चाहता हूँ, बिकॉज इट्स बेसिकली एन इंटरेस्ट ड्रिवन काइंड ऑफ अ थिंग। अगर आपको कोई फाइनेंस पसंद आता है, आप फाइनेंस पढ़ो आप, लेकिन उसमें नॉलेज इतना अच्छा लेके जाओ कि आप 10 on 10 ना हो, कम से कम 7 8 9 हो जाओ, और आपको लगे कि आप मेरे को बहुत कुछ आता है, राइट। तो बहुत कुछ आता है यानी आप फिर वैसे सर्कल में जाओ। अभी अगर आपका कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी में कोई फंड मैनेजर होगा जो आपका दोस्त बन सकता है, तो उससे बात करो, आपके नॉलेज को वहां लेके जाओ, तब तो बात बनेगी। फिर वो चाहे नॉवल हो, या फिर वो मिल्स एंड बून्स हो, शग्नी शेल्डन हो, हैरोल्ड रॉबिन हो, या फिर इरविन वॉलेस हो। मैं सब ये बुक पढ़ के ही रहा हूं। तो मैं रिच डैड पुअर डैड भी पढ़ चुका हूं। मगर पॉइंट क्या है कि आप पढ़ते चले जाओ, और आप जब पढ़ते चले जाओगे और वो सर्कल में रहोगे जहां पर ये बुक रीडर्स वगैरह होते हैं, जैसे चिटनेरी सेंटर में हर 15 दिन में या 1 महीने में वहां पर एक सर्कल है जो बुक रीडर्स का मिलता है, और वो बुक डिस्कस करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने ऐसा सर्कल फॉर्म करना चाहिए जहां पर आप एक दूसरे से किताब एक्सचेंज कर रहे हैं। आजकल तो ई बुक्स का जमाना है, तो मैं चाहूंगा कि आप स्पेसिफिक टू योर इंटरेस्ट वो बुक पढ़े, फिर वो दुनिया में कुछ भी हो सकती है। अब रही बात सॉफ्ट स्किल्स के लिए, सॉफ्ट स्किल्स के लिए मैंने अपनी एक किताब अभी लिखी है, द गोल्डन बुक ऑन एम्प्लॉयबिलिटी, जिसमें मैंने 27 चैप्टर्स लिखे हैं। 14 चैप्टर्स है जॉब रेडीनेस में, इंटरव्यू रेडीनेस में 13 चैप्टर्स है। तो ये सब मैंने अपने रिसर्च से लिया है। उसमें बहुत सारे टूल्स दिए हैं। तो मैं सिर्फ ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ, बच्चों को वो टूल्स भी देना चाहता हूँ ताकि वो इंडिपेंडेंट हो, वो जान सके। देखिए, मेरे लिए लाइफ अभी लर्निंग मेथोडोलॉजी एक सिमुलेशन पे जाकर रुकता है। लर्न इट, ट्राई इट एंड टेस्ट इट। तो पहले आप सीखो, उसके बाद में आप उसका एक बार ट्राई करो, ट्राई करने के बाद में फिर उसको टेस्ट कर लो। ये 3 चीजें जो सिमुलेशन का हिस्सा है, जो आज मोस्ट कॉन्करेंट पेडागोजी में आना चाहिए। मेरे को लगता है कि हर कॉलेज में सिमुलेशन रहना चाहिए, जहां पर बच्चा खुद में लर्न कर रहा है या टीचर के असिस्टेंट से लर्न करवा ले रहा है ना, अपने आप को तैयार कर रहा है कि वो ट्राई कर पाए, है ना, रियल वर्ल्ड के लिए। और एक टेस्ट होना चाहिए जिससे बच्चा पूरा जब बाहर निकले तो उसका जितना भी नॉलेज बेस होगा वो इतना पक्का होगा कि ऑटोमेटिकली हम लोग सब नॉलेज ड्रिवन रहेंगे और एक क्वालिटी पे रहेंगे, जहां पर जैसे कहते हैं कि बाकी सब कंट्री का मालूम नहीं, लेकिन आने वाले दशक में इंडिया विल बी अ नॉलेज बेस ह्यूज कंट्री विथ ग्रेट नॉलेज बेस। क्योंकि हमारी शायद शिक्षा ऐसी है, हमारा कल्चर ऐसा है, हमारी मिट्टी ऐसी है, योग है, वेद है, उपनिषद है ना, माइथोलॉजी है, ये सब हमें बहुत कुछ सिखाती है और सब कुछ अंदर है। तो मैं बोलता हूँ झांको अंदर में, जो पसंद आता है वो करो, लेकिन कर लो पूरा, उसको एक्शन तक लेके जाओ। सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट 2020? कौन सी ऐसी 2025 में कौन सी ऐसी जॉब्स रहेगी जो हाई पेइंग रहेगी? अब मैं आपको शौक नहीं देना चाहता, बहुत सारी जॉब्स है जो अच्छा होगी, जैसे एआई वाली जॉब्स। एआई किसी की जॉब नहीं लेगा, लेकिन एआई वाला बंदा जो अच्छा प्रॉम्प्ट डाल सकता है और उसको उसमें निपुणता आ गई है, वो बंदा बहुत लोग की जॉब पक्का लेगा। तो एआई डेफिनेटली एक है। फिर मशीन्स में आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल का बड़ा जमाना आ गया, इलेक्ट्रिकल ईवीज आ गया। बट ईवीज का एक प्रॉब्लम है कि वहां पर वो बैटरी आपको कॉस्टली अफेयर हो जाता है, तो वो गाड़ी इतनी महंगी हो जाती है। मेरे को लगता है वहां बहुत स्कोप है कि आप एक ऐसा ईंधन यानी रिन्यूएबल एनर्जी या एनर्जी पे रिसोर्स पे काम करें जहां पर आप ईवी बना सकते खुद का। एक ही है। अब देखिए, ड्रोन कंपनियां बहुत सारी हो गई, है ना। अब आपने देखा होगा कि पहले
कुछ साल पहले 4-5 साल पहले आपको ड्रोन रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही चलते थे, आपको अलाउ नहीं करते थे, परमिशन नहीं मिलती थी। बट अभी जमाना उल्टा हो जाएगा, देखना आप एंटी ड्रोन बनाओ आप, मैं आपको इंडस्ट्री दे रहा हूँ, एंटी ड्रोन बनाओ आप, ड्रोन तो चलेगा। अब लोगों को प्राइवेसी भी चाहिए ना, लोग इतने बड़े बड़े बंगले बना रहे हैं, पॉश घर में रह रहे हैं, स्काई स्क्रेपर्स में रह रहे हैं, और ये 30-40 फीट, 300 फीट, 500 फीट तक ऊपर चला जाएगा और वहां सबकी प्राइवेसी हाईजेक कर लेगा। हाँ, तो आपको एंटी ड्रोन बनाना पड़ेगा, जैसे वायरस के लिए एंटीवायरस आता है, एंटीवायरस कंपनी वायरस बनाती है, करेक्ट? it act like a security guard for it. एग्जैक्टली, सीसीटीवी सर्विलेंस वगैरह वो ब्लॉक कर देगा, आपकी प्राइवेसी को पूरा मास्क कर लेगा। आपकी प्राइवेसी आपकी है भाई, तो एंटी ड्रोन बनाने वाला आप अपना काम चालू कर लीजिए, बहुत आगे जाएगा, राइट? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरा जंप कर रहा है अभी ईवीज में, तो मेरे को बहुत ज्यादा स्कोप नहीं लग रहा है कि बहुत इसमें होगा। हाँ, मेरी चिंता ये है कि हम लोग बहुत गलत चीज खरीद रहे हैं और खा रहे हैं, तो शायद वहां बड़ा स्कोप है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत बड़ा स्कोप है और ग्रो फार्मिंग का बहुत बड़ा स्कोप है, और इंडिया इज प्राइमरीली अभी भी बहुत सारा लैंड खाली है, तो अगर कुछ इंजीनियरिंग बच्चे ही मिलके ग्रुप फार्मिंग करे तो शायद आने वाले दिनों में रिलायंस या फिर अडानी या फिर ये जितने भी बिरलाज हैं, ये लोग ग्रुप फार्मिंग में उतरेंगे, एक दिन तो पक्का उतरेंगे, और ये लोग जो जो माल बेचेंगे, जो करवाएंगे अपने से, एक फार्मर वहां काम कर रहा होगा, उससे अच्छा है कि फार्मर समझ जाए कि भैया ग्रुप में हम आ जाए और एकता में कुछ कर पाए तो कर पाए। तो ये सब इंडस्ट्री है जो बहुत ल्यूक्रेटिव है आजकल। तो सभी इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री कितना बड़ा हो गया, 3,500 करोड़ रुपए सिर्फ स्विगी और जोमेटो ने बना लिया अपना ब्रांड, सिर्फ एक ही चीज के लिए कि आप रेस्टोरेंट नहीं जा रहे हैं, रेस्टोरेंट का चीज आपके घर आ रहा है। अगर आपने छोटी चीज कर ली ना, गाड़ी उठा के रेस्टोरेंट चले जाए, तो शायद इनका नुकसान होने लगेगा। बट आपकी आदत ये होगी कि आपको बाहर का पका हुआ खाना अब अच्छा लगता है, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। घर की अच्छी नहीं लगती। हाँ, मगर कब तक? आप जिंदगी भर तो बुला के नहीं खाओगे, और जिंदगी भर बुला के खाओगे तो फिर एक दिन आप क्या खा रहे हैं ये आपको समझना होगा, जरूर, बहुत जरूरी है। सर क्या ऐसे जरूरी, मैंने देखा है, नोटिस किया है कि इंजीनियरिंग होने के बाद मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल एमबीए की तरफ जाते हैं, जबकि आपको एमबीए करना था तो आप बीबीए क्यों नहीं किया? करेक्ट, सही सवाल है, ऐसे क्यों? सवाल अच्छा है। बीबीए एमबीए बहुत आइडियल है, आजकल तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी आ रहे हैं, बट आइडियली एमबीए आपने करना ही नहीं चाहिए। पढ़ाई एक टाइम पे करनी चाहिए, चाहे वो आपकी डिग्री कंप्लीट कर लो, काम करो जाके, आप कम से कम 3-4-5 साल काम करो और समझो बॉस क्या होता है, ऑफिस टाइमिंग क्या होते हैं, बायोमेट्रिक क्या होता है, पगार क्या होती है, लंच ब्रेक कैसा होता है, बॉस की डांट कैसी होती है, ब्रीफिंग क्या होता है, फीडबैक क्या होता है, डीब्रीफिंग क्या होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होता है, बहुत सारी चीजें जो आपको करनी चाहिए, जो आपको पढ़ते वक्त नहीं समझ में आती, और आप तब भी स्टूडेंट जैसे बिहेव करते हैं जब आप एमबीए के बाद में काम करने जाते हो। तो अच्छा ये होगा कि आप डिग्री लो, और डिग्री के बाद में आप 4-5 साल काम करो, उसके बाद में अगर आपको एमबीए करना है तो फिर सबसे बेहतरीन कॉलेज से करो। जैसे आईएसबी हैदराबाद मेरा फेवरेट है ब्रांड, मैं हर जगह बोलता हूँ, और क्योंकि वो 3 स्टार 3 गोल्डन स्टार नंबर 1 ऑफ इंडिया है, और वो फ्लैगशिप कोर्सेज चलाता है, ग्लोबल कोर्सेज चलाता है, आप उसको पिक एंड चूज कर सकते हैं और अपने लिए एक नया आयाम चूज कर सकते हैं। मेरी घर की कहानी है कि मेरे घर में मेरे एक जमाई है जिन्होंने 15 लाख के पैकेज में थे, 10 साल का एक्सपीरियंस था, उन्होंने 25 लाख का लोन उठाया, आईएसबी हैदराबाद गए, उन्होंने क्रैक किया, और वहां उन्होंने 2 साल रह के जो पढ़ाई की है, इंटीग्रेट किया कोर्स को, और उन्होंने पिक किया, और आज वो वाइस प्रेसिडेंट है मल्टीनेशनल कंपनी की, जहां पर 900 एम्प्लॉय है। तो पॉइंट क्या बोलना चाह रहा मैं कि हम लोग इमीडिएटली जंप ना करें एमबीए करने, क्योंकि एमबीए इज मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट तब समझोगे ना जब आप मैनेज हो रहे होंगे, जब आप यूज होते हैं तभी तो मालूम पड़ता है कि मैं गलत यूज हो गया, फिर आपको ये मालूम पड़ता है कि मैं अगली बार यूज नहीं होऊंगा, मैं अब यूज करूंगा। जब आपको यूज होने से यूज कैसे करना है इसका फर्क जानना है, तो बहुत जरूरी है कि आपको पहले एक ग्राइंड में जाना होगा, या फिर आपकी फैमिली वैसी होनी चाहिए जो मैनेजमेंट को बहुत आसानी से आपको समझा दे। बट एमबीए करना है तो मेरे ख्याल से 5 साल आपने नौकरी करनी चाहिए और खूब मेहनत करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क, सब लोग हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो हार्ड वर्क करता है उसके लिए ये समझ बहुत आसान हो जाएगी कि वो स्मार्ट थिंकर, स्मार्ट वर्कर बनेगा, एंड स्मार्ट मूव करके एक मेरे ख्याल से अच्छे एमबीए कॉलेज में जा सकता है। जैक्सन ये एक अच्छा कॉलेज है बैंगलोर का, और एक है जिंदल सोनीपेट,
ये एक अच्छा कॉलेज है जहाँ से करना चाहिए, क्योंकि ये इन लाइन विद आईएसबी है, बट वो दो गोल्डन स्टार लेके हैं, आईएसबी हैदराबाद इज 3 गोल्डन स्टार। तो फिर इसमें तो ऐसा हो गया that engineering will work as an employee and the people who come from business background they will lead them or become a leader on that. ऐसा नहीं है। हल्दीराम मेरा दोस्त है, तो अब वो गुण को समझ गया। आज से 50 साल पहले उनके पिताजी पॉलिथिन में चूड़ा बना के बेच रहे थे, तो लोग हंसते थे उनपे, आज वो हंसते हैं सब पे। आज उनके अगर ऑफिस जाएंगे तो आप कंटिन्यूसली मतलब जो आप बोलते हैं ना, रिसर्च, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, लोग आ रहे हैं चीजें बना बना के उनको दिखा रहे हैं, सर ये है ये है, तो वो हर एक आइडिया के लिए ओपन है। आप ओपन तो रहो। ऐसा नहीं है कि जिस जो पुश्तैनी जायदाद लेके बैठा है वो रईस ही रहेगा। आजकल तो नए एंटरप्रेन्योर ज्यादा आ रहे हैं, न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट टाइमर ज्यादा आ रहे हैं, जिनके पास दौलत बहुत ज्यादा है, वो दौलत खोते जा रहे हैं, क्योंकि दौलत एक ऐसी चीज है ना, बहुत खतरनाक चीज है। पैसा आपको ज्ञान नहीं देता, मगर ज्ञान आपको पैसा दे सकता है, ये पक्का है। तो आप ज्ञान पे ज्यादा निवेश करो, और जो कर सकते हैं आप, आपका दिमाग ये चलना चाहिए कि इससे होता क्या है, कौन लोग करते हैं, मेरी पहुंच कहां तक जाती है, मेरे को कहां बढ़। If अगर अभी मैं ग्रेजुएट हो गया, मेरे को एक कंपनी स्टार्ट करनी है, तो मुझे व्हाट डू सजेस्ट मी? आई विल पिक अ जॉब और आई विल स्टार्ट अ कंपनी आफ्टर माय ग्रेजुएशन। नहीं, अगर आपका पैसा जरूरत नहीं है तो मैं बोलूंगा कि जाओ और किसी एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप के अंडर में काम करो। एक किराने की दुकान में काम करके देखो कि किराना कैसे बेचते हैं। उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि पैकेट कैसे बांधते हैं, और कौन सा पैकेट बना बनाया रखना चाहिए, है ना, कैसे आपको सौंफ के अंदर में मतलब हल्के कंकर डाल दो, वजन बढ़ जाता है। ये बहुत करते हैं। मैं आपको गलत करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप जाओ एक बार किसी के अंडर में काम करो, जिस इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हो और जिस इंडस्ट्री में आप यू आर आइंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये भाजी वाले जो रहते हैं, ये भाजी वाले गरीब नहीं रहते हैं, ये लाते हैं 100 रुपए का और बेचते हैं 200 रुपए का, और यही चर्न करते हैं, तो उनका ब्रेक इवन बहुत फास्ट होता है। और पॉइंट क्या है समझो आप, कि जब तक आप सब्जी नहीं बेचोगे और आपको मालूम नहीं रहेगा कि यार इसका तौल कैसे करना है, इसको फ्रेश कैसे बेचना है, लोग मेरे पास क्यों आना चाहिए, मेरी सब्जी में दम क्यों है, और मैं क्वालिटी क्यों दे रहा हूँ, काइंड ऑफ हर एक चीज कहाँ से लाना है, कितनी सस्ती कहाँ मिलती है। तो ये सब चीजें आपको समझने के लिए मेरे ख्याल से आपको किसी एंटरप्रेन्योर के अंडर में काम करना होगा, या किसी भी दुकान में काम करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में काम कर लो आप, एक मेडिसिन की दुकान में काम कर लो आप समझ लो कैसे काम होता है, होलसेलर क्या होता है, कितना मार्जिन होता है, सीएनएफ से माल लेने से क्या होता है, कंपनी से लेने से क्या होता है, इनवॉइसेस कैसे रन करते हैं, पैसा कितना रहता है, कितना बचता है, उसका उस पर अपने को टैक्सेस क्या रहता है, आपको पैसा समझना पड़ेगा। तब जाकर एक आपको आप रेप्लिकेट करना चाहते हैं किसी भी बिजनेस या इंडस्ट्री को, तो आपको ग्राउंड लेवल पे जाना पड़ेगा और उसका पूरा फंक्शनिंग समझना पड़ेगा, डाउन टू अप डाउन द लेडर, सब करना पड़ेगा। सीखो, 10 साल दो अपने आप को, 11वें साल में आप अपना दुकान खोल के बैठो, ऑफिस खोल के बैठो, कंसल्टेंसी खोल के बैठो। तो इसलिए कहते हैं कि लीडर बनने से पहले आपको मजदूर बनना पड़ेगा। हाँ, लीडर होने के लिए पहले आपको फॉलोअर होना पड़ेगा। हाँ, मजदूर, हम सब मजदूर है, जो नौकरी कर रहा है वो सब मजदूर है, बंधा है ना, लेकिन किसी ने उसको रोका नहीं है। आप चाहे तो नौकरी करते करते आप अपने दूसरे आर्ट का, जो भी आपके पास स्किल है, आर्ट है, उसका प्रदर्शन करके पैसे कमा सकते हैं और बढ़ सकते हैं, है ना। और एक किताब लिख रहा हूँ मैं, बहुत जल्दी वो आ जाएगी अगले साल, और यहाँ पढ़ाने के बाद में मैं बहुत सारे कंपनियों में मतलब कॉर्पोरेट्स में मास्टर ऑफ सेरेमनी करता हूँ, म्यूजिक शोज को एंकर करता हूँ, वॉइस ओवर करता हूँ। तो आपके हुनर को पहचानो और धीरे धीरे करते रहो, जिसमें आपको संतुष्टि मिले और पैसा भी मिले, ऑफ कोर्स। तब आपने भी एंकर कहा, तो आपको एंजाइटी नहीं होती एंकरिंग करने के पहले? हल्का सा नर्वसनेस हर जगह लगता है। आज शाम को प्रोग्राम है, तो मैं शुरुआत तो थोड़ा सा नर्वसनेस के साथ करूंगा, और ये नर्वसनेस मेरे साथ कभी जाएगा नहीं, और मैं जाने देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं नर्वसनेस के ऊपर आ जाता हूँ तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी आपको धक्का दे देता है, सरप्राइज शॉक भी देता है कभी कभी। तो आपने थोड़ा सा टेंटेटिव चलना, बट आपको मालूम होना चाहिए कि आपको किस दिशा में लेके जाना है ना। हो सकता है आपकी पहली आवाज बुलंद ना हो, लेकिन धीरे धीरे रहते आवाज बुलंद हो जाती है। तो आपको एक फॉर्मेट समझना होगा कि आप ये फ्लो क्या है, थोड़ा सा वो आपको बनाना पड़ता है। अब करते करते अभी ऐसा हो गया है कि अब माइक उठाओ और चालू कर दो, तो ऐसा हो जाता है। कई बार ऐसे ही हुआ है कि आज मेरे को प्रोग्राम देना है और मेरे को मालूम पड़ता है 2 घंटे या 3 घंटे या दोपहर को मालूम होता है शाम को करना, तो तैयारी रखता हूँ
और जिस चीज को आप पसंद करते हो करने में, तो आपको उतना हिचकिचाहट नहीं होता। सर मैंने एक ट्रेड नोटिस किया है स्टीव जॉब ने, बिकॉज ही मतलब मैं उनको मानता हूँ। हाँ सो उन्होंने उनके इसमें सुंदर पिचाई हाँ और मार्क जुकरबर्ग, हाँ इनके इसमें मैंने मतलब जी पब्लिक फिगर्स है, इनके इसमें मैंने एक ट्रेड नोटिस किया है कि दैट वो पूरे स्टेज को ऑक्यूपाई करते हैं जब भी वो स्पीच देते हैं, जस्ट लाइक दे हैव दैट कॉलर माइक और समथिंग। सो वो पूरा स्टेज कवर करते हैं और पूरी ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं। सो इफ अगर मुझे करना है, मुझे एंकरिंग करनी है, सो व्हाट शुड आई डू, जस्ट लाइक दैट। उदाहरण बड़ा गलत है। देखो, जिनके पास पैसा है, नाम है, उनको तो दुनिया देखेगी भाई, हाँ। तो वो कहीं भी जाए स्टेज पे। हम्म, मगर आप अगर बोलना चाहते हैं तो आपकी बोली इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी इंटाइसिंग होनी चाहिए, इंट्रीगिंग होनी चाहिए कि लोग आपको सुने, अरे यार कुछ सुना है यार, कुछ अनोखा है, ये अच्छा बोलता है यार, इसका लहजा अच्छा है, इसका स्टाइल अच्छा है, इसका तरीका अच्छा है, ये कैसे भाव दे रहा है, फीलिंग के साथ बोलता है, इसका वर्ड स्ट्रेस बहुत अच्छा है, इंटोनेशन है, और भावनात्मक रूप से इसके शब्द निकलते हैं। तो जहां आपको आपको ऑडियंस समझना पड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ऑडियंस समझना पड़ता है। आप बच्चों के लिए वो नहीं कर सकते जो आप बड़ों के लिए करते हैं, आप महिलाओं के लिए वो नहीं कर सकते जो आप किसी मतलब पुरुषों के लिए करते हैं। तो आपके जहां जहां ऑडियंसेस है, पहले ऑडियंसेस पहचानो। प्रेजेंटेशन स्किल में आता है, और ऑल प्रेजेंटेशन आर ऑडियंस ओरिएंटेड। तो आपको जानना होता है, आप डॉक्टर के बीच में तो आप क्या बोलोगे। कल डॉक्टरों के बीच में मेरा एक फंक्शन है, तो कल उनके साथ रहूंगा, और वो पिछले 12 साल से मेरे को बुला रहे हैं। तो एंकरिंग का मतलब बड़ा सिंपल है मेरे लिए कि मेरी ऑडियंस क्या है, वो क्या चाहती है, वैसा आपने देना है। और आप बोलते हैं, शाहरुख खान जैसे कहते थे कि पैसा जिसके पास आ जाए भैया, उसकी बोली तो सब सुनते हैं, लेकिन ज्ञान जिसके पास है, उसके पास पैसा आ जाए तो उसके लिए रिस्पेक्ट भी आता है। सर डू यू थिंक दैट इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन उतना हाई लेवल पर नहीं है, बट लेवल है ही नहीं। हाँ। कितने परसेंट है? 2% से भी कम है लोग जो टैक्स भरते हैं, है ना। और आप अगर अच्छे से अपना जीडीपी देखेंगे और इन्फ्लेशन रेट देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये सब सच नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं समझते हम। पैसा समझना बड़ा बड़ा सिंपल है कि आप 1 रुपए कमाते हो, तो आपको 1 रुपए में एक्चुअली मिल कितना रहा है? सर और कैसे करें? 100 रुपये। हाँ, मैं सिंपल बोलता हूँ, आपका जो भी तनख्वाह होगा, आप 12 महीने की तनख्वाह खाते हो, तनख्वाह कमाते हो, लेकिन आपका मालूम है आपको टैक्स में कट जाता है, और सीधे सीधे आपको 9 महीने की सैलरी मिलती है। यानी आपने 12 महीने काम ना करते हुए 9 महीने काम किया, जिसके टैक्स कटते हैं वो बहुत आसानी से समझ जाएंगे बात। पॉइंट क्या है, आप समझो कि आप कमा क्या रहे, दे क्या रहे, आप कौन सी जगह पे, है ना। फिर इंटरप्रिटेशन क्या है लॉ के, आप कैसे पैसे बचा सकते हैं। तो पैसा समझने के लिए आपको पूरा समझना पड़ेगा, है ना। सिर्फ पैसा कमाने लायक वैसा नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे मैं इतना कमाता हूँ कि मैं गवर्नमेंट को इतना टैक्स दे रहा हूँ, गलत। मैं बोलता हूँ इतने सारे ये पॉलिटिशियंस हैं और इतने सारे ये बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनको आपने देखा है टैक्स भरते हुए? कितना टैक्स भरते होंगे? डोनेशन मांगते हैं, जस्ट लाइक उनके पास तरीके हैं, तरीके है ना, उनके पास कंसल्टेंट्स है। donation से तो अगर वो कंसल्टेंट उनके लिए पैसे बचा के दे सकता है, तो आपके लिए क्यों नहीं दे सकता? तो आपको तरीका पैसे समझना पड़ेगा कि आप कैसे बचा सकते हैं, और 12 के 12 महीने का पैसा आप कैसे निकाल सकते हैं। फाइनेंशियल लर्निंग इंडिया में अभी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टिंग एंगल्स बढ़ चुके हैं। पीपल आर देयर, इन्फ्लुएंसर्स आर देयर, लॉट ऑफ सीएस आर कमिंग इनटू फोरे। बट पॉइंट इज, अपने को समझना पड़ेगा पैसे का मूल्य, वैल्यू ऑफ मनी, राइट। इसलिए 1 रुपए की बात की थी मैंने, 1 रुपए की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि जिसको 1 रुपए समझ में नहीं आता, वो 10 रुपए जैसे बोलता ना, 10 रुपए यार चल दे दे यार, हो जाएगा यार इसको। ये पानी का बोतल लेने जाते हो आप, 10 रुपए की बोतल आप 12 रुपए में खरीदते हो, क्यों? पैसे का वैल्यू जाना। और आप थोड़ा सा चल के जाओ आपकी कैंटीन में, देखो आप 10 रुपए की चीज 12 रुपए में बिक रही है, मैं नहीं लेता उससे। इसलिए नहीं कि उसका तरीका गलत है, जब एमआरपी से ऊपर बेचना नहीं है तो आप क्यों बेच रहे हो? और कोल्ड ड्रिंक कोल्ड सर्व करना चाहिए, तो आप क्या समझ रहे हैं कि कोल्ड को फ्रीजर में डाल के मेरा पैसा आ रहा है तो मेरे को ज्यादा पैसे लेने चाहिए? मैं लेता नहीं ऐसी दुकान से, क्योंकि देखिए, आप जितना जान जाओगे पैसा और कॉमन अवेयरनेस, कॉमन सेंस, मेरे ख्याल से उतने अच्छे हो जाते हैं, आप फ्री हो जाते हैं दिमाग से। सर एक जनरल सजेशन जो आप फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक दो, जनरल this is सजेशन। my last question. अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है तो मैं फिर इसका जवाब भी वैसे देता हूँ। गलती करो, गलती करने से डरो मत। आपके दिल के करीब, सबसे करीब जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपकी गलतियां।
और आप सिर्फ एक ही चीज मानते हैं, सक्सेस। ये सक्सेस और फेलियर की लड़ाई मत करो, बस कुछ पाना है तो कुछ करना है, इतना ही करो। करो, सोचो मत, कर लो। आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा एक टाइम पे आते आते कि जो मेरा सोचा हुआ था वो गलत था, और जो मैं अब सोच रहा हूँ वो उस गलती के कारण बेहतर बनता जा रहा हूँ। आप बेहतर तब बनोगे जब आप गलती करोगे। तो गलती करने से डरो मत, बहुत सारी गलतियां करो, नई नई प्रकार की करो, और बहुत सारा सीखो, बस। सर ऐसे बोल सकते हैं कि ये 4 साल एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, दूसरा इम्प्लीमेंट। अब तक तो आपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट ही किया ना। आप 12वीं में थे तो JEE का क्या, वहां पर अटक गए आप। आपके 10वीं में अच्छे मार्क्स आए थे, 12वीं में कम आए क्योंकि आपका फोकस वहां आ गया था। तो आपने गलती तो बहुत सारी करते आ रहे, और अब पूरा आप जो भी बने हैं आपकी आइडेंटिटी, उसमें गलतियों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको मैं एक्सपीरियंस कहता हूँ। सी, एक्सपीरियंस से बड़ा गुरु नहीं होता है ना। द बिगेस्ट टीचर इन लाइफ इज एक्सपीरियंस। सो गैदर एज मच ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर, एंड देयर विल बी सम cases of success as well, but then success cannot stand in isolation. It is a mix of failure, and it's a journey of failures. When it will not fail this time, it will lead to a success. That's it. Thank you, sir, to coming to our show. Thank you for having me here. God bless you all.